आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। Jai Shriman! Welcome to PhD English School. Thank you. Welcome, sir. Parade! Montesete, chal! As per our school tradition, our school students are performing Tilak. Give a big round of applause to our today's chief guest. Heartily welcome all dignitaries on the dais. Sir, respected administrator ma'am, respected guest of honor, principal ma'am, vice principal ma'am, teachers and lovely students. Spirituality is an essential aspect of human life that can influence an individual's overall well-being and quality of life. When spiritual well-being is nurtured, individual can develop a positive outlook on life, cultivate empathy and compassion, and develop a sense of social responsibility. I request now respected Administrator Ma'am to introduce our today's chief guest. Good morning, Honorable Chief Guest, respected dais, respected school management, teachers, and my dear students. Today, we have a great personality with us, Shri Hari Chaitanya Maharaj Ji, and मराठी मध्ये असं म्हणतात, साधू संत येती घरात तोच दिवाळी दशहरा. म्हणजे आज आपण खऱ्या मानात दिवाळी आणि दशहरा आमच्या शाळेत साजरा करत आहोत. आय एम सो ग्लॅड अँड सो हॅपी बिकॉज वेन वी हॅड द ओल्ड बिल्डिंग, स्वामीजी हॅज ब्लेस्ड आवर स्कूल बिफोर कोविड, and now in our new building Swamiji has come. So thank you so much Swamiji for honoring our institution with your blessings. Dear children, Swamiji is working day and night for the betterment of the mankind and the society, to remove the ill effects, superstitions and evils of the society. Swamiji has many ashrams all across India. It is being told that when Swamiji was very small,
he had encountered gods and done many miracles in his life. When Swamiji was 2 years old, Swamiji could recite the complete Ramcharitmanas. So, Swamiji is considered as an image of God, and we are highly obliged for you to be in our institution. I request our school management, school trustee, Shri Amit Bhosekar sir, to come and do the felicitation of Honorable Chief Guest, Shri Chaitanya Hari Puri Ji Maharaj. Dear children, give a huge round of applause. It's a great thing, and we are highly blessed to have Swamiji in our institution. Our institution has become pure and more spacious by Swamiji's presence. Swamiji has taken birth in Brij Bhumi in Kaman, and Swamiji is considered a great devotee of Shri Krishna. तो स्वामी जी आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्कूल में आए। I request respected trustee sir and administrator ma'am to perform puja. सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मां सरस्वती के प्रांगण में देश के भावी कर्णधार हमारे देश के भविष्य आप नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पहुंच करके जो आनंद हुआ उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आपका अनुशासन, आपके संस्कार जो विद्यालय परिवार के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं या आपके परिवार के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। आप इस देश के
एक सुयोग्य नागरिक बन सके। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आवाहन करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं? You? Yes? What do you want to be? Good. You? Yes? Yeah. My daughter? Yeah. What do you want to be? Doctor. I want to be a doctor. I want to be an engineer. I want to be a scientist. I want to be this. मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहती हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बनना चाहते हो और आप बन जाओ, मैं हृदय से हार्दिक शुभेच्छा भी देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। My well wishes and blessings are always with you all. But these all are dreams. I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be a pilot, I want to be this and this and this. These all are dreams. ये सपने हैं और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूं, सपने भी देखने हैं तो ऊंचे ऊंचे देखना, कभी छोटे सपने मत देखना। लेकिन बट you have to pay the price to make them come true. उन सपनों को साकार करने के लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहती हूं, बहुत अच्छी बात है, पर ये सपने इनको साकार करने के लिए you have to pay the price to make them come true. और याद रखना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है? आई, बोलिए, प्लस एम प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। Impossible itself says that I am possible, so nothing is impossible in this world. It may be difficult, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है। अब घड़े अशेष शक्तु, क्या अशक्य नहीं, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है। कोशिश तो करो, और याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। हाथ पर हाथ धर के न बैठे रहे, हम कोशिश करें, हम अपने प्रयास करें, सही दिशा में प्रयास करें। जो हमारे गुरुओं ने मार्गदर्शन दिया है उस पर चलते हुए प्रयास करें। एक दिन होगा, सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी, हो ही नहीं सकता ना। मैं नहीं कह रहा कब, हमें बचपन से हमारे अंदर निराशा नहीं भरी गई, हताशा नहीं भरी गई। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। अगर आता है तो बोलो ना मेरे साथ, deep in my heart I do believe we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart I do believe
वी शैल ओवरकम। अब हिंदी अनुवाद भी बोलते हैं ना, हम होंगे कामयाब, सारे बोलेंगे और हाथ ऊपर करके बोलेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। द डे विल कम, विल गेट सक्सेस, सफलता हासिल होगी। जिन्होंने हासिल की है वो क्या आसमान से टपके है क्या? पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम कुछ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। नहीं, जिन्होंने सफलता हासिल की है, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, वो आसमान से नहीं टपके। हमारी और तुम्हारी तरह वो भी किसी मां के गर्भ से पैदा हुए हैं ना। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर हो, किसी कॉलेज में लेक्चर हो या विद्यालय, क्योंकि यहां छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत सरल बोलने की आवश्यकता है जो आपके समझ में आ जाए। और इसे करोड़ों लोग देखेंगे विभिन्न टीवी चैनल्स के माध्यम से, पूरे विश्व के लोग देखेंगे और आपको जानकारी मिली होगी। कोई अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकता, ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स और 102 देशों में व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं और 172 देशों के लोग इस जबान से जुड़े हुए हैं। यह आपका अनुशासन, यह आपके संस्कार पूरा विश्व देखेगा। कहीं पर भी हो, मेरा प्रवचन अलग होगा, लेकिन एक वाक्य, एक सेंटेंस जरूर बोला करता हूं मैं। नोट कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में नोट कर लीजिए। इवन ए, बोलिए, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, बन के दिखाया है, वो काम हासिल किया है, वो भी आसमान से नहीं टपके। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मन में कोई शंका नहीं है, किसी तरह की निराशा और हताशा नहीं है। मैंने बचपन से उन लोगों को पढ़ा जो मरने के बाद इतिहास में नहीं आए, जिन्होंने अपने जीवन के रहते हुए एक इतिहास की रचना की है। जीवन के रहते हुए। उनमें एक एडमंड हिलेरी भी था, नाम सुना है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? माउंट एवरेस्ट। बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि उस पर कोई चढ़ नहीं पाता था, सोच भी नहीं पाता था। एक एडमंड हिलेरी था जिसने बहुत साधना की, तपस्या की, अपने आप को तैयार किया, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लायक बनाया अपने आप को। लेकिन कई वर्षों की कठोर साधना के बाद जब उसने कोशिश की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हाथ नहीं लगी, पर उसके मन में कोई निराशा नहीं आई।
उसने नहीं कहा कि मेरी किस्मत खराब है, पंडित जी जरा हाथ देखना। अरे भाग्य तो उसका भी जिसके हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा? है? मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान समय की मांग है, हमें ज्योतिष की शरण में नहीं, हमें जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। असतो मा सद्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहां लोग मरते क्यों हैं? मृत्यु लोक कहते हैं इसे। अरे मृत्यु लोक में मरेंगे नहीं तो कहां मरेंगे? देवलोक में। जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है, रिटर्न टिकट कंफर्म है सबका। भगवान सबको लंबी उम्र दे, सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन दे, लेकिन रिटर्न टिकट सबका कंफर्म है। एवरीबडी हैज टू गो बैक। हरि बोल, एक बार बोलो ना जोर से, हरि बोल। और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। भारत माता की, हाथ ऊपर करके, भारत माता की, वंदे वंदे। तो मरना सबने है, एक दिन आया है सो जाएगा, लेकिन मजा तब है जो जीवन मिला है इसमें हम कुछ ऐसा करके जाएं कि हम मर के भी ना मरे, मर करके भी अमर हो जाए। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, हम उनको अमर शहीद कहते हैं। ये नहीं कहते मर गए वो। किसी संत महापुरुष के नाम के आगे हमने कभी नहीं कहा वो मर गए। शरीर आया है तो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ, हमेशा लोगों के दिलों में आप राज करते रहो। मजा तब है जीवन में कुछ ऐसा, और असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट मे बी डिफिकल्ट। पहली बार कोशिश की, सफलता नहीं मिली, उसने मन में कोई निराशा और हताशा को जन्म नहीं दिया। विचार किया कि मेरे प्रयास में कहां कमी रह गई, मेरे एफर्ट्स में कहां कमी रह गई। उन कमियों को मैं देखूंगा, उन्हें दूर करूंगा और फिर कोशिश करूंगा। द डे विल कम, आई विल गेट सक्सेस। फिर उसने उन कमियों को देखा, दूर किया और फिर कोशिश की। अगर उसकी आत्मकथा को आप पढ़ें तो वो कहता है दूसरी बार में भी मुझे सफलता नहीं मिली, पर मैंने अपने भाग्य को नहीं कोसा, किसी को दोष नहीं दिया। माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करके मैंने इतना कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कांट ग्रो बट आई कैन। ओ माउंट एवरेस्ट, तू पहाड़ है, ये नहीं खड़ा रहेगा, तू आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन मैं मानव हूं, आई कैन, मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू, तेरे को जीत करके दिखाऊंगा मैं। और थर्ड अटेम्प्ट में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच करके अपने पैरों से उसे रोंदा, वह झंडा झाड़ के दिखाया, जीते जी इतिहास की रचना की है। कठिन हो सकता है, अवगढ़ असु सकते अशक्य नहीं। अभी हमारी बेटी कह रही थी, साधु संत येती घरा तोची दिवाली दशहरा। महाराष्ट्र की ये कहावत कोई मामूली नहीं है और ये हकीकत है, पर कैसे, हाउ? साधु संत घर में आए तो दिवाली दशहरा होता है, कैसे, हाउ? ये दिवाली शब्द में छुपा है। वो जो शिक्षा आपको दे, उन्होंने जो शिक्षा दी वह आपने ली। दिवाली में तीन ही तो वर्ड है। साधु संत जो आए, उन्होंने जो शिक्षा दी वह आपने, जोर से बोलो, ली। ये दिवाली का क्रम यदि ठीक चलता रहा तो जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भरपूर हो जाएगा। यह है साधु संत येती घरा तोची दिवाली दशहरा। आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लक्ष्य निर्धारित करो। देयर शुड बी एन एम इन योर लाइफ। एमलेस कैसा होता है? जस्ट लाइक ए पेंडुलम। पुरानी घड़ियों में आपने देखा होगा,
नीचे घंटा लटका होता है और ऐसे हिलता रहता है। जब तक चाबी है बेचारा हिलता है डुलता है, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं का वहीं रहता है। बिल्कुल ऐसे ही एमलेस व्यक्ति जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, ये जस्ट लाइक ए पेंडुलम, जब तक जीवन रूपी चाबी है कुछ ना कुछ करता है, हिलता डुलता है, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। लक्ष्य निर्धारित करो, आप सोचो मुझे क्या बनना है, मुझे पूछने की आवश्यकता ना पड़े व्हाट डू यू वांट टू बी, मुझे ये बनना है। और आप पर थोपा ना जाए जबरदस्ती कि आपको नहीं यही बनना है, यही बनना है, नहीं, आपका इंटरेस्ट किसमें है। और खाली लक्ष्य निर्धारित ना हो, आप सही दिशा में प्रयास करते हुए बाधाओं, कठिनाइयों, परीक्षाओं, चुनौतियों से घबराए बिना चलते रहो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्तवरान नवोदित, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। द डे विल कम, यू विल गेट सक्सेस। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आपको सफलता मिले, यही तो मैं चाहता हूं। अशक्य तो नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, इट मे बी डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट भी कब तक होता है? जब तक करने की कोशिश ना करो किसी काम को। हो इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी बुक, हो जब तक नहीं पढ़ोगे ऐसे ही लगेगा। रोज नींद से पढ़ो ना, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। आधी जब हो जाएगी, लो आधी हो गई, आधी भी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। मैं सोचा करता था जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, तो जब मैं पढ़ा करता था तो काफी लग्जूरियस लाइफ लीड की। तो मैं सोचा करता था लोग पैदल कैसे चलते होंगे, मेरे को बड़ा मुश्किल सा लगता था। लेकिन जब मैंने चलना शुरू किया 1982, 1983, 1984, 3 साल पैदल चला भारत में और 23,000 किलोमीटर चला मैं, और 22,000 फीट की हाइट तक हिमालय में गया बिना किसी साधन के। जब करने की कोशिश करो तो फिर असंभव तो क्या कठिन भी नहीं लगेगा, आप आराम से कर जाओगे। करो तो सही। या फिर आप उसके बारे में जानते नहीं हैं तो कठिन लगता है। अगर मैं कहूं, अब तो धीरे धीरे सबको मालूम होने लग गया। जब मैं भारत की पदयात्रा में था तो मैं लोगों से पूछा करता था, कोई भी 10 वर्ड्स ऐसे बोलो जिसमें ए नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं आप खड़े होकर बोलो तो जल्दी जल्दी, बिना रुके, सोचना नहीं है, खड़े हो जाइए, खड़े आप हो जाओ। 10 वर्ड्स, 10 शब्द ऐसे कोई भी बोलो उसमें ए लेटर नहीं आना चाहिए, बी लेटर नहीं आना चाहिए, सी लेटर नहीं आना चाहिए और डी लेटर नहीं आना चाहिए। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? आप भी कह दोगे और सारे कह देंगे, लेकिन मैं बता दूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 तो क्या 999 तक ए कहीं आएगा ही नहीं। हरि बोल। मैंने कहा कोई भी वर्ड बोलो। इंग्लिश के प्रोफेसर भी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी घबरा जाते थे, सबके बीच इंसल्ट ना हो जाए, यार इसमें ए तो नहीं है, इसमें बी तो नहीं आ जाएगा। और आप 100 तक बोलते जाइए, ए आएगा कहीं, बी, सी, डी, कोई भी काम असंभव तो है ही नहीं। कठिन भी कब तक है? जब तक हम करने की कोशिश नहीं करते या फिर उसके बारे में जानते नहीं है। यह है ना आपको जनाने के लिए यहां पर, यहां का स्टाफ, ये सारी चीजें मिलाकर के लेकर चलिए।
आईएएस जानते हैं आप? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईएएस जिसने टॉप किया उसका इंटरव्यू छपा था कंपटीशन सक्सेस मैगजीन आती है एक, नाम सुना है? उससे पूछा गया क्रेडिट गोज टू हूम? पूरे देश में आप फर्स्ट आए हैं, इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? आप होते तो क्या कहते? बोलो ना। मेहनत को? तो मेहनत तो सबने की थी, लाखों लाखों लोगों ने मेहनत की थी। मेहनत तो करनी है, लेकिन उस बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा परमात्मा की कृपा। बोलो, जोर से बोलो। गुरुजनों का मार्गदर्शन। जोर से बोलिए। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। माता पिता, आई बाबा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे साथियों की शुभकामनाएं, वेल विशेस और हमारी मेहनत, ये सब मिलकर के रंग लाई है। यही सीखना है। अपने देश को नहीं भूलना है, अपने देश की संस्कृति को नहीं भूलना है, देश के मूल्यों और मर्यादाओं को नहीं भूलना है। यह कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। हम उन ऋषियों की संतानें हैं। वो ढोंगी पाखंडी नहीं थे, वैज्ञानिक ऋषि थे। हर चीज के पीछे क्या लॉजिक है उसको जानते हुए वर्णन किया है उन्होंने। आप, माई वेल विशेस एंड ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। यू ट्राई योर बेस्ट, रेस्ट लीव ऑन गॉड। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। आपकी कोशिश सफल हो, आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें और इस देश के सुयोग्य नागरिक बनकर के इस देश का नाम रोशन कर सके। हमें घर में यही सिखाया जाता था, कभी गर्व मत करना, अभिमान मत करना, तुम कभी गर्व मत करना, लेकिन ऐसा जीवन जीना कि परिवार तुम पर गर्व करे, तुम्हारा नगर तुम पर गर्व करे, तुम्हारा प्रांत तुम पर गर्व करे, यहां तक कि तुम्हारा राष्ट्र तुम पर गर्व करे। समझ लो कि तुमने कुछ किया है। आप कर पाए, बहुत बहुत हृदय से हार्दिक शुभेच्छा, आशीर्वाद। मैं कई बार आया हूं, जो पहले की बिल्डिंग थी उसमें आया हूं, एक बार नहीं कई बार आया हूं, और मुझे खुशी है कि जो बच्चे जिन्होंने सुना उस समय, उनमें से बहुत से बच्चों ने अच्छा मुकाम हासिल किया है। आप भी करना, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने नगर का, अपने प्रांत का, अपनी स्टेट का और अपने राष्ट्र का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करना। कर पाओ ऐसा, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। आप लोग आए बड़े प्यार से और प्रेमपूर्ण आग्रह किया, और प्रेमपूर्ण आग्रह को मना करना, महाराज जी तो क्या, महाराज जी के महाराज जी की भी हिम्मत नहीं है। मेरे से लोग पूछा करते हैं कि क्या आप वहां आ सकते हैं, वहां आ सकते हैं। मेरा एक ही वाक्य होता है, हरि चैतन्य की कोई हिम्मत नहीं जो कहीं आ सके या जा सके, पर तुम्हारे प्यार में वो ताकत है जो नंगे पैर भी बुला सके। धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपके संस्कार, धन्य है आपकी भावनाएं, जो व्यस्त कार्यक्रम में से भी यहां आप लेकर के आए। फिर मौका लगा, बहुत कुछ बातें करेंगे अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, अपने राष्ट्र की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, यही समय अभाव के कारण अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार हाथ उठा के जोर से बोलेंगे, भारत माता की। गूंज उठे, भारत
माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। And definitely our students will follow the path which Swamiji has shown. Thank you so much for your great guidance and motivation. Now I request respected Vice Principal Ma'am of Senior Secondary Section to give the further Chief announcement. guest, Sri Swamiji, Honorable School Management, Honorable Trustee Sir, respected Administrator Ma'am, dignitaries present on the dais, all heads, teachers and my dear students. On this auspicious occasion and with the blissful presence, gracious presence of Swamiji, it's my privilege and honor to announce the great achievement of our student, Ms. Vedika Gopale, who has secured 16th state level rank in MTS examination, that is Maharashtra Talent Search examination. She has received cash prize from state government. So I would like to call Vedika Gopale on the stage, and may I now request Honorable Swamiji, all the respected dignitaries to do the honors. I request respected Trustee Sir also to please do the honors. Our school students and lifestyle.organic. at our planet.com, Shantanu Gopale and Prajwal Tambe from Standard 8 to receive the honors. Really, our students are blessed that they are receiving the honor by Honorable Swamiji, by the hands of Honorable Swamiji. Stair climbing robot is based on rocker bogie mechanism, and they have been appreciated there. Heartiest congratulations, students. You have done a great job at regional level. They have presented their projects very well. The next project, lifestyle.organic village at our planet.com, presented by Shantanu Gopale and Prajwal Tambe. They are receiving the honor from Honorable Swamiji. This project is having different products which are prepared by our students with the natural substances. By Go Earth and all, they have made the dhoop. So this is really a great honor. They are going to get the, I would like to mention here that they are going to get the patent also. It is for this project, science projects. I request, Ma'am has guided so well the students, and they have got the appreciation, a great appreciation at regional level for science. After listening to Swamiji, how was the energy? Hi, yes. You have to understand the truth of life based on spirituality, and that is called as the inner connection which we have to develop, right? So बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया बच्चों को, और हमारे स्कूल का ये सौभाग्य है कि आपने सब अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाल के हमारे बच्चों के लिए समय निकाला। तो जोर से बोलना है बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक बार सभी बच्चे हाथ ऊपर करके जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरि बोल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Honorable Swamiji, for the precious guidance and gracious presence in our institute. Really, we are fortunate and blessed to have you, sir. सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।